پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بڑی شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہی ہیں۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ پورا پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان نے 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت پی ڈی ایم کی صفوں میں کافی پریشانی ہے۔ بلوچستان میں الیکشن کی تیاری کا جائزہ لینے آئے ہوں۔ بلوچستان اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے استعفوں کی تصدیق کے معاملے پر از خود سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کی قیادت آج پارٹی چیئرمین عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تاریخ کا تعین کرے گی۔ پی ٹی آئی قیادت بدھ یا جمعرات کو سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے پر غور کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان آج پارٹی مشاورت میں حتمی تاریخ کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ایک اور احسن اقدام۔ لاہور کے لیے پہلے مرحلے میں ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں خریدنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 5 پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا 20واں اجلاس ہوا، جس میں لاہور کے لیے پہلے مرحلے میں 300 ہائیبرڈ بسیں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا کہ ماضی میں سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم کا تجربہ فیل ہوا اور پائیدار ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم پر تشکیل دینے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ عمران خان فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک ہفتے بعد اسمبلیاں توڑنے کے بعد آج ہی توڑ دیں۔ انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جانتے ہیں تم کس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہو۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے تھانے برقائی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ لکی مروت پولیس کے مطابق واقعے میں 4 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ لکی مروت پولیس کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے تھانہ برگئی پر 2 اطراف سے حملہ کیا، جس کے بعد پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا پیچھا کریں گے، عوام کی عدالت سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ امید ہے نون لیگ انتخابات سے بھاگنے کے لیے خود یا الیکشن کمیشن کا استعمال نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈر یہ ہے کہ اپنے پارٹنرز کی مدد سے نون لیگ کی عوام کی عدالت سے بھی مفرور نہ ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر شیری مزاری نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے احکمانہ رویہ فوری ترک کرنا چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف کے اپنے اقدامات سے استعفوں کی منظوری واضح ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اسپیکر نے جن 11 ارکان کے استعفے منظور کیے وہ استعفوں کی تصدیق کے لیے اسپیکر کے سامنے کبھی نہیں گئے۔ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کو 11 اپریل کے بعد سے کوئی تنخواہ بھی ادا نہیں کی گئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث اہم موٹر ویز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے شیخ پورہ، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے فیض پورہ سے سمندری تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے نے بتایا کہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 اور شیرشاہ انٹرچینج سے ترنڈا محمد پناہ تک موٹر وے M5 کو بھی شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ پیاز، لہسن، ادرک اور سبز مرچ سستے نہ ہوئے۔ سبزیوں اور گوشت کے بعد پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پیاز کا سرکاری نرخ 215 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 240 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا، جبکہ سبز مرچ 450، لہسن اور ادرک 400 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ ٹماٹر 100، آلو 60، بند گوبھی 50، پھول گوبھی 60 اور مٹر 100 روپے کلو میں دستیاب۔ کراچی میں موسم خشک اور راتیں سرد رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک متوقع۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب 50 سے 60% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شام کے اوقات میں ہوا میں نمی کا تناسب
30 से 40% रहने का इम्कान। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5262 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बाक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल आज फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने का आखिरी मौका। फ्रांस के एम्बापे भी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। दोनों फाइनलिस्ट टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद। किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। कराची टेस्ट के दूसरे रोज नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से आज ओली पॉप और बेन डेकेट ने पहले नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 7 रन एक खिलाड़ी आउट से किया, जिसके बाद 58 रन पर नौमान अली ने बेन डेकेट को 26 रन पर LBW आउट किया। नौमान अली ने अगली ही गेंद पर जो रूट के को कैच कराकर पाकिस्तान टीम को तीसरी कामयाबी दिलवाई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि बलोचिस्तान में बड़ी शख्सियात PTI में शमूलियत अख्तियार कर रही हैं। कोयटा में मीडिया से बातचीत करते हुए असद उमर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने 2 असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया। इस वक्त PDM की सफ़ों में काफ़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। बलोचिस्तान में इलेक्शन की तैयारी का जायजा लेने आया हूँ। बलोचिस्तान असम्बली तहलील करने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। असद उमर का कहना था कि 600 अरब रुपए से ज्यादा बलोचिस्तान के लिए हमारी हुकूमत ने पैकेज दिया। सूब हाईवे इमरान खान का मंसूबा था। सुना है कि इस पर शहबाज शरीफ इफ्तिताह करने पहुंचे हैं। उनका मजीद कहना है कि बलोचिस्तान को हुकूक दिए जाएं तो कोई इसे तरक्की से नहीं रोक सकता। इमरान खान की हुकूमत बनेगी तब बलोचिस्तान को हुकूक मिलेंगे। PTI रहनुमा असद उमर ने भी ये भी कहा कि आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक हुकूमत को बातचीत करना चाहिए तो तैयार हैं। इंतखाबात के अलावा कोई और बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा कि वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी से भी मुसलमानों पर जारी जुल्म को रोकने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। बिलावल ने जिस दलेरी से कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, इस पर कौम को फख्र है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मोदी सरकार से मुताल्लिक बयान एक हकीकत है। बिलावल भुट्टो के मोदी सरकार से मुताल्लिक ज़रूरतमंदाना बयान की तायद करते हैं। पूरी कौम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ खड़ी है। भारतीय सरकार ने निहत्ते मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म जारी रखा हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर ख़ारजा के ज़रूरतमंदाना बयान पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। सलीम मांडीवाला ने कहा कि मुल्क भर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिमायत में रैलियां निकाली जाएंगी। वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी भी मुसलमानों पर जारी जुल्म को रोकने के लिए इक़दाम उठाए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की तस्दीक के मामले पर आज खुद स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत आज पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेगी। PTI क़यादत बुध या जमरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने पर गौर कर रही है। PTI सराय के मुताबिक इमरान खान आज पार्टी में मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। PTI ने यह फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से
خط پر تاحال کوئی جواب نہ ملنے پر کیا ہے۔ پارٹی کے نائب صدر چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کچھ روز قبل اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر استعفوں کی تصدیق کے لیے وقت مانگا تھا، تاحال اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں استعفوں کی تصدیق کے لیے وقت نہیں دیا۔ اب ہم خود تاریخ کا اعلان کر کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اسپیکر آفس کو آگاہ کر دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی اراکین کس تاریخ کو خود پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ اقلیتی برادری کو مکمل معاشی، سیاسی اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ گورنر ہاؤس میں کرسمس سے متعلق کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، سینیٹر کامران مائیکل، خوشب آزاد مارشل اور موڈیٹر چرچ آف پاکستان نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ اقلیتیں ملک کی ترقی کے لیے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اے آر کارنیلیس عظیم قانون دان اور آئین پاکستان بنانے والوں میں سر فہرست تھے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تمام اقلیتوں کے لیے مساوی حقوق کا واضح اعلان کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسیحی بھائیوں کو کرسمس کے موقع پر دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا پیچھا کریں گے، عوام کی عدالت سے فرار نہیں ہونے دیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ امید ہے نون لیگ انتخابات سے بھاگنے کے لیے خود یا الیکشن کمیشن کا استعمال نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈر یہ ہے کہ اپنے پارٹنرز کی مدد سے نون لیگ عوام کی عدالت سے بھی مفرور نہ ہو جائے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ جمہوریت میں عوام کو حتمی فیصلوں کا اختیار ہے، اس حق کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ایک اور احسن اقدام، لاہور کے پہلے مرحلے میں ماحول دوست ہائیبرڈ بسیں خریدنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا 20واں اجلاس ہوا، جس میں لاہور کے لیے پہلے مرحلے میں 300 ہائیبرڈ بسیں خریدنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نئی بسوں میں خواتین، اسپیشل اور نابینا افراد کے لیے سیٹیں مخصوص کرنے کا حکم دیا، جبکہ خصوصی اور نابینا افراد کے لیے بس کے دروازے کے قریب سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ خواتین خصوصاً طالبات کی تعلیمی اداروں کے اوقات کار کو مد نظر رکھ کر نئی بسوں کے روٹس کا تعین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے لاہور میں نئے بس سٹاپ بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ عوام کی سہولت کے لیے لاہور میں 200 نئے بس سٹاپ بنائے جائیں گے۔ لاہور میں مجموعی طور پر 513 ہائیبرڈ بسیں چلائی جائیں گی، جبکہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نئی ہائیبرڈ بسیں پرائیویٹ آپریٹرز کے ذریعے چلائے گی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا کہ ماضی میں سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا تجربہ فیل ہوا اور پائیدار ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو تشکیل دینے سے غفلت برتی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ گجرا میں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے دفتر میں تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی آکشن پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ نئے قائم شدہ تھانہ برگئی پر دہشت گردوں کے حملے سے 4 اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے رات گئے تھانہ برگئی پر ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ شہید ہونے والوں میں محرر ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم، کانسٹیبل عمران شہید، کانسٹیبل خیبر الرحمان اور کانسٹیبل سبز علی شامل ہیں۔ پولیس سرائے کا کہنا ہے کہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ٹی اے ایس آئی گل صاحب خان، کانسٹیبل بلقیاس، کانسٹیبل امیر نواز اور فرحان اللہ شامل ہیں۔ حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ علاقے میں گزشتہ روز 2 افراد کو ذبح کر کے قتل بھی کیا گیا تھا۔ گزشتہ مہینے بھی 6 پولیس اہلکاروں کو تھانہ ڈاڈیا والی کی حدود میں شہید کیا گیا تھا۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل سب جماعتیں محلاتی سازشوں کی پیداوار ہیں۔ 13 جماعتی کرپٹ ٹولے کو پہلی مرتبہ عوامی حمایت کے حامل لیڈر سے پالا پڑا ہے۔ اپنے ایک بیان میں عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ عمران خان کے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان کے بعد پی ڈی ایم ٹولے کے اوسان قطع ہو چکے ہیں۔ مشیر داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ٹولے کے انتخابات سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔
13 जमाती करप्ट टोले को पहली मरतबा अवामी हिमायत के हामिल लीडर इमरान खान से पाला पड़ा है। पहली मरतबा इमरान खान ने पीडीएम के टोले की बारी बारी करके इक़्तिदार के खेल पर पर्दाफाश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस एहतजाज करते रहें, ये उनका हक है, लेकिन काश भारत में सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के हकूक़ सलब करने पर भी कोई एहतजाज किया जाता। बिलावल भुट्टो का भारत में अपने खिलाफ एहतजाज पर रद्द अमल में कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत के वज़ीर आज़म का माजी क्या था। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करके ना तारीख बदली जा सकती है, ना हक़ाइक़ को मसख़ किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय क़यादत को मशवरा दिया कि हम माजी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तक़बिल तब्दील कर सकते हैं। भारत से मुतालबा है कि वो मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान खान तारीख पर तारीख मत दो, इस्तीफे दो और जान छोड़ो। कराची वस्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि इमरान खान, लोग जानते हैं आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आप काम करते हो तो भारत खुश होता है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब बात करते हैं तो भारत की हुकूमत को आग लगती है। जलसे से खिताब करते हुए साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तब्दीली के नाम पर जो लोग कराची वालों से वोट लेकर गए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि बड़ी तादाद में माओ बहनों की जलसे में शिरकत से साबित हो गया कि जिला वस्ती जयालों का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान फेस सेविंग चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान एक हफ्ते बाद असेंबलियां तोड़ने के बजाय आज ही तोड़ दें। दूसरी जानिब सईद गनी का कहना था कि तारीख पे तारीख नहीं, इस्तीफे दो और जान छोड़ दो। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि लोग जानते हैं तुम किसके एजेंडे पर काम करते हो। एएनपी रहनुमा अमल वली का कहना था कि इमरान खान ने असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी ताकि अपोजिशन दोनों सूबों में अदम एतमाद लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सीनियर नायब सदर शीरी रहमान ने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को हकमाना रवैये को फौरी तर्क करना चाहिए। शीरी मजारी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राजा परवेज अशरफ के अपने इक़दाम से इस्तीफों की मंजूरी वाज़ेह है। उन्होंने लिखा कि स्पीकर ने जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए वो इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने कभी पेश नहीं हुए। शीरी मजारी ने मजीद लिखा कि PTI के मुस्ताफी अरकान को 11 अप्रैल के बाद से कोई तनख्वाह अदा नहीं की गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत अवाम की हालत पर रहम करे, रुकावटें मत खड़ी करें। हुकूमत को चाहिए कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस बुलाए। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना खत्म करें, पाकिस्तान आए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, ना ही गवर्नर राज लग सकता है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे। 560 से ज्यादा सीटों पर इंतखाबात मुल्क की सियासत की दरो दीवार को हिला कर रख देंगे। इलेक्शन में हर रुकावट हुकूमत के गले पड़ेगी। हुकूमत अवाम की हालत पर रहम करे, रुकावटें मत खड़ी करे और नवाज शरीफ को बुलाए। नवाज शरीफ न्यू ईयर लंदन में मनाए। बीमारी का बहाना खत्म करें। पाकिस्तान में 2/3 अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमल वली खान ने सवाल उठाया कि अगर असेंबलियां तोड़नी हैं तो ऐलान क्यों नहीं किया गया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वक्त इसलिए दिया गया ताकि दोनों सूबों में अपोजिशन अदम एतमाद लाए। अमल वली ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को तजवीज़ होगी कि 23 दिसंबर तक अदम एतमाद न लाए जाए ताकि ये झूठा मजीद झूठा साबित हो जाए। बल्दियाती इंतखाबात में जहां शहरी नई लोकल क़यादत को लाने के लिए सरगर्म हैं, वहीं साबका मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से भी इलाका मकीनों के लिए कोई खातिर ख्वाह काम न किया जा सका, जिसका गिला इस्लामाबाद के सेक्टर G61 UC 59 के मकीन करते नजर आए। कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए इलाका मकीनों का क्या कहना था,
जानते हैं सैयद उमर वैस करदेजी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल 59 G6 1 इस्लामाबाद के मकाम पे। आज यहाँ पे हम जानेंगे इस वक्त, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन है जो उनकी आमद है, और हर उम्मीदवार जो है वो अपनी जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहा है। अवामी मुहिम जारी है और मुसलसल वो लोगों से राब्ते में भी हैं, वोट की जोड़ तोड़ भी जारी है। इस वक्त यहाँ पे इस इलाके में जो G6 1 का इलाका है, यूनियन कौंसिल 59, हम यहाँ पे आज ये जानना चाहेंगे कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, बहुत मसाइल हैं। आप इस चीज़ को मान रहे हैं? मान रहा हूँ मैं। दूसरा ये जो चौधरी अलादीता साहब क्या करते रहे 5 साल? नहीं, उन्होंने जो काम किए हैं वो नजर आ रहे हैं, ये बात नहीं है, किए काम उन्होंने। अगर तो उन्होंने जो काम किया, अगर आप वो भी बता दें, और जो काम नहीं हो सके वो भी बता दें, तो क्या करने की जरूरत है अभी मजीद? ये स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए, गलियां पक्की होनी चाहिए, सीवरेज का निजाम ठीक नहीं है। इस वक्त तो सारों की आप लोग देखें, गलियों में जाए तो बहुत भरपूर तरीके से कंपटीशन हो रहा है। चौधरी अलादीता खड़ा है चेयरमैन की तरफ से, और जो पीटीआई की तरफ से वो खड़ा है चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर। यहाँ पे काम भी करवाते हैं ये लोग जो जीत रहे हैं, या फिर ऐसे ही है? बस मुझे तो नहीं नजर आ रहा, जो आपको काम नहीं नजर आ रहा? नहीं मुझे नजर आ रहा। वो दिखाएंगे, वही अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। हमारा मेन रोड नहीं ठीक हुआ तो गलियां नहीं ठीक हुआ। आप क्या चाहती हैं कि अभी जो भी जहाँ पे जीते तो उसे आप क्या कहेंगी कि वो यहाँ पे क्या करवाए? मैं कहूंगी जो भी यहाँ पर जीते वो हमारी थोड़ा काम करे और सबके मसले सुने, चाहे वो जो भी हैं। अगर वो कोई छोटे से भी घर में रहते हैं उनकी भी बात सुने, छोटे छोटे काम भी करवाएं। ये छोटे गली मोहल्लों के मसाइल हैं, तो गली मोहल्लों के ही उम्मीदवार ये बनते ही तो गली मोहल्लों के लिए। जितना कोशिश करते रहे हैं, पहले कर भी दिए काफी सारे, फिर क्या है जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? ये छोटे मोटे मसले गली मोहल्लों के, ये पानी, बिजली, सुई, गैस, और क्या मसले। अभी यहाँ पे भाई बता रहे थे कि सीडीए कुछ काम नहीं करने देती। सीडीए क्यों नहीं काम करने दे रही? उस सीडीए के पास फंड होते हैं ज़ाहिर है, फिर इनको देंगे साथ मिलकर। यहाँ पे असल में मसाइल हैं जिसको छुपाया जा रहा है, मसाइल बताए नहीं जा रहे। और यह है कि जो कि यहाँ पे चेयरमैन, इससे पहले भी यही चौधरी अलादीता साहब थे, उन्होंने कुछ काम भी करवाए हैं। ये नहीं कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करवाए, लेकिन वही फंड का रोना रो रहा है आज भी हर उम्मीदवार कि भाई पिछली हुकूमत ने हमारे साथ सपोर्ट नहीं किया और हम उस तरह से काम। पॉलिटिकल असिस्टेंट बराए इंसानी हकूक रॉबिन्सन अजीज फ्रांसिस का वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की खुसूसी हिदायत पर गुजरात जेल का अचानक दौरा। उन्होंने दौरा के दौरान असीरान जेल को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और जेल में सफाई सुथराई और किचन का तफसीली मुआयना भी किया। और रॉबिन्सन अजीज ने असीरान जेल के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और जेल हुकाम को असीरान जेल और लवाहिकीन के मसाइल हल करने बारे हिदायत जारी की। इस मौके पर रॉबिन्सन अजीज फ्रांसिस ने हिदायत देते हुए कहा कि असीरान जेल का खास ख्याल रखा जाए, इनके लिए साथ अच्छे अखलाक से पेश आया जाए ताकि उम्मीद की जा सके कि ये लोग सजा मुकम्मल करने के बाद ये एक अच्छे शहरी बन सकेंगे। रॉबिन्सन अजीज का मजीद कहना था कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। इंसानी हकूक की हिफाजत के लिए ऐसे दौरों का सिलसिला जारी रखूंगा। इस मौके पर जेल सुप्रीडेंट गुजरात गुलाम सरवर लंगड़ियाल, डायरेक्टर इंसानी हकूक मोहम्मद यूसुफ, असिस्टेंट डायरेक्टर मियाँ उमर हयात भी मौजूद थे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी आज महफूजाबाद पुराना पिंड मलका में मनाई गई, जिसमें मेजर जनरल शुएब बिन इकराम ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल व अस्करी हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की।
पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। गहरी धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समंदरी तक बंद, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेर शाह इंटरचेंज से तरंडा मोहम्मद पनाह तक बंद, जबकि राजनपुर की इंडस हाईवे पर भी हद निकाह सिफर पर पहुंच गई। प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च सस्ते न हुए। सब्जियों और गोश्त के बाद फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। फी दर्जन अंडों की कीमत में भी इजाफा हो गया। प्याज के सरकारी निर्ख 215 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 240 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि सब्ज मिर्च 450, लहसुन और अदरक 400 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। टमाटर 100, आलू 60, बंद गोभी 50, फूल गोभी 60 और मटर 100 रुपए फी किलो में दस्तियाब हैं। चिकन ब्लायलर गोश्त भी इंतहाई निर्ख पर फरोख्त होने लगा। ब्लायलर गोश्त का निर्ख 422 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडे 1 रुपए फी दर्जन मजीद महंगे हो गए। फार्मी अंडों के निर्ख 263 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। चिकन और सब्जियों के बाद फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सेब 300 रुपए फी किलो में दस्तियाब। मौसमी किनो 220 रुपए फी दर्जन, जबकि अमरूद 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। सरगोदा रोड पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और वैन में तसादुम के नतीजे में दूल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अफसोसनाक हादसा सरगोदा रोड पर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब पेश आया, जहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और वैन में तसादुम के नतीजे में दूल्हा और इसकी साली समेत 3 अफराद मौका पर जाँ बहक, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे के शिकार होने वाले अफराद कैरी डबल वैन में सवार होकर खुशाब से दूल्हा दुल्हन समेत मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे। रेस्क्यू टीम ने हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद को DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5262 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में 24 घंटों में मौसम खुश्क और रातें सर्द रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। महकमे मौसमियात का कहना है कि सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 50 से 60% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के औकात में हवा में नमी का तनासुब 30 से 40% रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में शिमाल मशरिक, मगरिब और जनूब से मगरिब हवाएं चलती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ताहिर मलिक का कहना है कि कल तक जो महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे, आज उनके दौर में आवाम से 2 वक्त की रोटी भी दूर हो गई। आटा, घी, दूध, पेट्रोल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क को सिर्फ इमरान खान बहरान से निकाल सकते हैं। फौरी इंतखाबात ही इस मसले का वाहिद हल है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 8-9 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए, जो बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, और इस हुकूमत ने आके जिस तरह का तूफ़ान एक गरीब आदमी के ऊपर बर्पा किया है, उसकी मिसाल पिछली दिहाइयों में नहीं मिलती। तो ये हुकूमत तो जिस दिन से आई है और आकर जो है वो डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें, आज देखें कि पेट्रोल की कीमत कहाँ आके खड़ी हुई है, और इंटरनेशनल मार्केट में
पेट्रोल की कीमत 70 रुपए से नीचे आ गई है, मगर ये साजिशी लोग जो इस मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं और इन्होंने इस नहज पे लाके मुल्क को खड़ा कर दिया है कि जो है आवाम की चीखें निकल गई हैं और गरीब आदमी किस तरह से गुजारा कर रहा है, और ये सियासतदान जो मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर वो जो है चैन की नींद सो रहे हैं। तो हम अपील करते हैं, हम ये एहतजाज रिकॉर्ड बार बार करवा रहे हैं, पूरे मुल्क में करवा रहे हैं कि ये महंगाई का तूफान जो गरीब आदमी के ऊपर बर्पा किया हुआ है, इससे हमें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमें निजात दिलाई जाए। दूध ले लें, आप जितनी सब्जियां ले लें, प्याज ले लें, टमाटर ले लें, अदरक ले लें, खाने पीने की अशिया के ऊपर जो तूफान है, गरीब आदमी सब्जी खाने से भी जो है वो कासिर हो चुका है और वो किस तरह से गुजारा कर रहा है। खान साहब जो भी फैसला करेंगे पूरी कौम जो है उसको 101 तस्लीम करेगी और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं और इमरान खान। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। अगर मिसाक जमहूरियत हो सकता है तो तमाम सियासी जमातों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिसाक मईशत के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2018 से लेकर उसके बाद अभी तक मतलब मुल्क जो ना हमारा नीचे गया है और अभी सबसे बड़ी जो परेशानी वाली जो बात है वो यही है कि आगे हमारे मुल्क का क्या बनेगा। और मेरा ये पैगाम है तमाम सियासी लोगों को भी, तमाम जितने ज़िम्मेदार हैं, सरकारी लोग हैं, अगर अपने वतन को हमने बचाना है तो हमें जिस तरह से मिसाके जमहूरियत हुई है और किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, ना मिसाके जमहूरियत में किसी ने, ना सरकार ने कोई एतराज़ किया, ना आवाम ने एतराज़ किया, क्योंकि एक अच्छा अमल था। और अब मेरी गुजारिश ये सबसे हाथ जोड़ के ये मैं बात बोलूँगा पूरे पाकिस्तान के बाख्तियार जो लोग हैं उनसे और ताजरों से, सबसे ये मिल के ये बात कहूँगा कि जब आपने मिसाके जमहूरियत बनाई, अच्छा अमल है, लेकिन मिसाके जमहूरियत के साथ साथ मिसाके मीशत को भी अगर आप बना लें या इसको सेट कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क और कौम इंशाल्लाह दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और आने वाला जो 2023 है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमारे यहाँ, हमारे वतन को, वतन में रहने वाले लोगों को, हमारे वतन के तमाम सिस्टम को अल्लाह सलामत रखे, ताक़यामत रखे। और हमें खुद सोचना होगा पूरी आवाम को कि हमने आगे क्या करना है। जब हम अच्छी उम्मीदें दूसरे से रखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ अच्छे कदम या अच्छी बात करें या अच्छा अमल करें। इंशाल्लाह इसी में सबकी बका है। और आने वाला वक्त 2022-23 जो भी मतलब 23, 24, 25, 26 जो भी है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानों और हम सबको अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। सबका भला सब। जैकोबाद के ईडन मैरी पब्लिक स्कूल में अजरक टोपी का दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें रज़ाए मुस्तफा स्कूल और ईडन मैरी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने टैबलोस पेश किए और डांस करके खूब एंजॉय किया। मजीद जानते हैं जान मोहम्मद मस्तूरी की इस रिपोर्ट में। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं जैकोबाद के ईडन मैरी पब्लिक स्कूल में, जो कि सिंधी टोपी अजरक का डे मनाया जा रहा है। बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुबैदा जकरानी। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से? जी, मैंने इस प्रोग्राम में मतलब कि पहले फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ इस प्रोग्राम में और मैंने जो बच्चों की टैलेंट जो देखी है, मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि सिंध में सिर्फ उन लोगों को आगे लाया जाता है जो बड़े बड़े स्कूल हैं, नॉमिनेटेड हैं, लेकिन ऐसे स्कूल जो अभी तक नॉमिनेटेड या उनको आगे नहीं ला रहे हैं, क्या वजह है वो मुझे समझ में नहीं है। लेकिन आज मैंने यहाँ की ये फील किया है कि काफ़ी इलाकों में ऐसे हमारे टैलेंटेड अभी छुपी हुई है, उसको भी बाहर निकाला जाए। मैं इस प्रोग्राम की मार्फत से या मीडिया
سندھ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اور دیگر میڈیا ورکرز کے تحفظ کے قانون کے تحت کمیشن قائم کر دیا گیا. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نوید عباس سے. جی نوید. جی بالکل، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا یہ خوشائند اقدام ہے. صحافی برادری کی جانب سے قانون کی منظوری سے اور اب کمیشن کے قیام کے اس اقدام کو سراہا ہے، جبکہ باضابطہ طور پر یہ کمیشن کے قیام کا آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جرنلسٹ نے حکومت سندھ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، سندھ پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت اس کمیشن کا قیام کیا گیا ہے، اور اس کمیشن کے قیام کے بعد پاکستان جنوبی ایشیا کی واحد ریاست بن گیا ہے جہاں صحافیوں کے تحفظ کے لیے نہ صرف قانون بلکہ کمیشن بھی موجود ہوگا. سندھ حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیشن کے سربراہ سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی ہوں گے، جبکہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری فہیم صدیقی اور ایپنک کے غلام فرید میڈیا ورکر کے نمائندے ہوں گے. جبکہ ہم بات کریں اخبار مالکان کی تنظیم APNS سے قاضی اسد عابد اور مدیران اخبار کی تنظیم CPN سے ڈاکٹر جبار خٹک، HRCP سے ڈاکٹر توصیف احمد خان اور سندھ بار کونسل سے ایاز حسین تنیو کمیشن کے رکن ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ارکان سندھ اسمبلی شازیہ عمر، ماروی فصیح اور سیکرٹری اطلاعات داخلہ. شورکوٹ کے نجی کالج میں فن فیئر میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں کے لیے جھولے سٹالز لگائے گئے، جس میں طلبات اور والدین کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی. فن فیئر کا مقصد بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس میں پرفارمنس دینے کے لیے تیار کرنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر سے. جی غلام شبیر. جی بالکل، میں موجود ہوں شورکوٹ ایک نجی سکول میں. ناظرین بتاتا چلوں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تعلیم کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس نجی سے کالج میں آج فن فیئر ہے اور یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے فن فیئر کو انجوائے کریں. یہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں، مختلف اسٹال لگائے ہوئے ہیں اور بچیاں یہاں پر جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر بچیاں اسٹوڈنٹ کالج موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں. بیٹا بتائیے گا، آج آپ کا فن فیئر ہے اور یہ سال میں پورا سال آپ کتاب کے بوجھ میں ہوتے ہیں، کیا لگا، آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت مزہ آیا ہمیں اور اس کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے یادگار رہے گا. ہم اسے پوری یاد کریں گے. بہت اچھا اور ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آیا اور ہم اس کا اتنی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے نا، پڑھ کے بور ہو گئے تھے. اب ہم بہت مزہ کیا، ہر ایک جھولا لیا، ہر ایک اسٹال پہ گئے، بہت مزہ آیا. ہر چیز کو ہم نے انجوائے کیا. بیٹا آپ بتائیے گا، آج بہت اچھا فن فیئر لگ رہا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کی کس کی محنت ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اسکول والوں کی، ہمارے سر پرنسپل سر انور کی محنت ہے، ہمارے سارے ٹیچرز کی محنت ہے. ہم لوگوں نے اپنی ایگزیبیشن لگائی، اپنا اسٹال لگایا جس میں ہماری پینٹنگز ہیں اور ہمارے اسکول والوں نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ان کو ہمارے بچوں کی ایفرٹس کا بھی معلوم ہے کہ ان کی ایفرٹس بھی کتنی قیمتی ہوتی ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آپ کیا بتائیں گے بیٹا، آپ بھی اس کالج کا حصہ ہیں، آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ ہم نے بہت اچھا انجوائے کیا. یہاں پہ بہت مزے کے سٹالز تھے، اس کے علاوہ اتنی اچھے گیمز تھی. ہم نے بہت انجوائے کیا اور میں اپنے سر کو بہت زیادہ تھینک یو کہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اتنا انجوائے کرنے کا موقع دیا. آپ بھی بتائیں بیٹا، آپ بھی فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں یا سیکنڈ ایئر میں، کون سے میں؟ 10th میں ہوں. 10th میں. اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پر بہت سے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، گول گپے والوں کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں. ٹیچرز نے بہت محنت کی ہے اور ہم ان کی محنت کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آیا. بیٹا سب سے اچھا اسٹال کون سا تھا، سب سے اچھا اسٹال جو سب سے زیادہ پسند آیا؟ ایگزیبیشن سب سے، جی کیونکہ وہ ہم نے لگایا تھا. اس سے لگایا ہوا ہے؟ جی وہ آپ کو اچھا لگا وہ؟ اس پہ ہم نے پینٹنگ خود کی ہوئی ہے. جی بالکل، میرے ساتھ یہ بچے موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے خود پینٹنگ کی ہے، ہم نے خود سٹال لگایا ہے، کھانے کے سٹال لگائے ہیں. یہاں پر ان کے مہندی کا سٹال لگایا ہوا ہے اسپیشلی طور پر. بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے اس فن فیئر کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایسے فن فیئر سال میں جب آتے ہیں پورا سال ہم اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ یہ دن آئے اور ہم بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے اس دن کو انجوائے کریں. ہم نصابی سرگرمیاں کے ساتھ ساتھ غیر ہم نصابی سرگرمیوں کا ہونا بہت. بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساری جو ایفرٹس ہیں یہ ساری ہمارے سر انور خان صاحب جو ان کے جو پرنسپل صاحب ہیں. پنجاب ہیلتھ انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحت پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ پر داخل ہونے والے مریضوں کو 100% فری ادویات دی جا رہی ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدنان سے، جو کہ اس وقت CEO صحت سہولت پروگرام علی رضا کے ساتھ موجود ہیں. جی عدنان بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جناح ہاسپٹل لاہور میں اور میرے ساتھ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل میں مریضوں کو کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں اور ہیلتھ کارڈ میں کتنے % مریضوں کو ادویات فری دی جا رہی ہیں اور کتنے مریض ابھی تک انہوں نے ایڈمٹ کر لیے ہیں. جی سر.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया कि हम आवाम तक सेहत सहूलत प्रोग्राम या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैगाम है वो आपके तवस्सुत से पहुंचाएं। मेरे साथ आज अली रज़ाक साहब मौजूद हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड, और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले में कि आवाम तक ये सहूलत पहुँचे। ये वो सहूलत है जो आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। इंश्योरेंस सिस्टम सारी दुनिया में राइज है लेकिन पाकिस्तान में नहीं था और मरीज़ों को अपना इलाज खुद कराना पड़ता था। अब गवर्नमेंट के तवस्सुत से और सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत अब पेशेंट्स को ये सर्विस फ्री मिल रही है और जिना अस्पताल में हम हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्डियोलॉजी के पेशेंट और जो हमारे ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट है उसके पेशेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के पेशेंट, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, एमरजेंसी, इस सब के पेशेंट, इवन ओपीडी में भी सबको सेहत सहूलत काउंटर हमने लगवा दिए हैं और हर जगह पे स्टाफ मौजूद है जो पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है। और हमारी फिगर अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त पूरे पंजाब में सबसे ऊपर जा रही है। इसकी तस्दीक अली रज़ाक साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मेरे साथ अली रज़ाक साहब जो चीफ ऑफिसर हैं सेहत सहूलत कार्ड के। आइए उनसे जानते हैं कि वो जिन्ना हॉस्पिटल के बारे में कितना फ़ंड उन्होंने रिलीज़ किया और कितने पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट किया गया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा आज की जो तकरीब हुई है, और आपकी मेहरबानी के सेहत कार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा एक पैगाम भी दे सकूँ। अभी तक आज के डेटे के मुताबिक 29,45,000 से ज़्यादा एडमिशन्स पूरे पंजाब में हुई हैं और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इस साल जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ था और पिछले 11 महीने और 15 दिन में अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी जो हमारा सेहत सहूलत प्रोग्राम है, इस पे हम 65 बिलियन 65 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं। जो मैंने आपको बताया है कि 29,45,000 से ज़्यादा मरीज़ दाखिल हुए हैं। इसी साल यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में इस 29,45,000 में से 23 लाख इसी साल दाखिल हुए हैं और भी लागत तकरीबन 52 बिलियन है, 52 बिलियन। जी बिल्कुल, अली रज़ाक साहब का कहना था कि सेहत का सहूलत कार्ड पे 100% जो मेडिसिन है फ्री दी जा रही हैं, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अपने जो नादरा के रिकॉर्ड हैं उसको। जेलानी पार्क में ट्रैफिक फैमिलीज काला सज गया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक का फैमिलीज वेलफेयर के लिए अहसन इक़दाम। ट्रैफिक वार्डन्स की फैमिलीज और बच्चों के लिए तफरीह का अहतमाम। ट्रैफिक वार्डन्स की कसीर तादाद में शिरकत। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मली ने भी बच्चों के हमरा शिरकत की। फैमिली गाला में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद का अहतमाम किया गया। बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर रेसिंग, क्रिकेट स्टेडियम का भी अहतमाम किया गया। फैमिली गाला में खाने पीने के मुतादिद स्टॉल्स भी सजाए गए। बच्चों के लिए पेंटिंग, भंगड़ा समेत मुतादिद खेलों का भी अहतमाम किया गया। पाकिस्तान का पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी पंजाब सूबा पंजाब की तरक्की में एक और रोशन बाब का आगाज है। 11 अरब रुपए का डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए गए बजट में से कलमा चौक अंडरपास की असर नौ तामीर और सीबीडी पंजाब बॉलीवुड और पार्किंग प्लाजा की बरवक्त तकमील इसमें शामिल है। सीबीडी पंजाब के मंसूबे सूबा पंजाब की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की मानद हैं। सीबीडी पंजाब ने खासतौर पर लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 4 अरब 20 करोड़ की लागत से जारी सीबीडी पंजाब के बॉलीवुड और कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मजमूई 2000 रेटिंग पायलट्स में से 12,000 रेटिंग पायलट कलील मुद्दत में मुकम्मल कर ली गई। सेवन स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा और प्रेस क्लब फिरोज वटवा के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया जो सेवन स्टार प्रेस क्लब ने जीत लिया। इस मैच का मकसद दुनिया सहाफत की जानिब से पैगाम देना था कि सहाफ़ी एक हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, इस वक्त मौजूद है फिरोज वटवा में सेवन स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा और प्रेस क्लब फिरोज वटवा में दोस्ताना क्रिकेट का मैच जो है वो खेला गया जो सेवन स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा ने वाज़ 32 से जीत लिया। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन सेवन स्टार प्रेस क्लब, उनसे जानते हैं कि उनका इस मैच के बारे में क्या कहना है। जी बिल्कुल, आज सेवन स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा और फिरोज वटवा प्रेस क्लब के दरमियान क्रिकेट का एक मैच खेला गया है जिसमें फिरोज वटवा प्रेस क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 120 रन का हदफ दिया जो कि सेवन स्टार प्रेस क्लब
फिरोज वटवा ने बहुत अच्छा खेल पेश करते हुए 120 रन का टारगेट आधे ओवर्स में अचीव कर लिया और इंतहाई आराम से ये मैच 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा ने जीत कर अपने नाम कर लिया। 7 स्टार प्रेस क्लब जिंदाबाद। जो तमाम मैच का जो सेहरा है ना, हमारे चेयरमैन 7 स्टार प्रेस क्लब के नासिर महमूद भट्टू साहब के साथ जाता है, जिन्होंने ये बाइसानी ये 120 रन जो है ना, उन्होंने बाइसानी 7 ओवर में मुकम्मल किए और मैन ऑफ द मैच ये करार दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 7 स्टार प्रेस क्लब फिरोज वटवा ने जो ये आधे ओवर में ये स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने का आखिरी मौका, तो फ्रांस के एम्बापे भी दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरस्म है। एक क्लब से खेलने वाले दोनों प्लेयर्स में से कौन कामयाब होगा, फैसला आज कतर के लोसील स्टेडियम में होगा। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल आज दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। दोनों फाइनलिस्ट टीमों में स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। किलियान एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप में अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। 7 मरतबा के बैलन डी और अवार्ड जीतने वाले लियोनेल मेसी सिर्फ एक बड़ा टाइटल ही अर्जेंटीना को जितवाने में कामयाब हुए। मेसी के पास अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाकर कैरियर का अख्ताम यादगार बनाने का आखिरी मौका। कराची टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की 304 रन की बर्तरी खत्म करने के लिए इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम 78, आगाज सलमान 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की टीम को गुज़िश्ता रोज खेले गए 3 ओवर्स में ज़ैक क्रोली का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। क्रोली को मोहम्मद इबरार ने पहले ही ओवर में LBW आउट कर दिया था। इंग्लैंड टीम आज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 7 रन एक खिलाड़ी आउट से कर रहा है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।